hands up and we can begin. So, one by one, please raise your hands first. Thank you. नौ शहरों की यात्रा की जो है नवरात्रि यात्रा कर रहे हैं और अभी तक आप जो है कि 5 दिन हो गए, छठे में आप दिल्ली आए, तो कौन से शहर का आपको ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा लगा वो जानना चाहते हैं। शहर का हर शहर का एक्सपीरियंस अलग था। एक शहर में किसी शहर में लोकेशंस एंजॉय किए, किसी शहर में फूड एंजॉय किए, किसी शहर में ऑडियंस को एंजॉय किया। सो डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अगर अभी I think we should all stop choosing something. It's all end of the day. It's our country, our cinema. We should enjoy every place. So मुझे तो बहुत ही मजा आया ये फिल्म। दसरा के वजह से ऐसा एक टूर लगाने को मिला और अहमदाबाद, नागपुर, जयपुर ये सब प्लेसेस मैं इससे पहले कभी गया था नहीं। तो अभी जब भी सोचूंगा इस प्लेसेस के बारे में तो it's a very nice memory associated with Dasra, so I'm very happy. नानी, मेरा नाम प्रीति होन है, आपके राइट में। Yeah, हाय। आप एक ऑलरेडी accomplished superstar हैं, तो जब whenever you see yourself on screen after so many movies, what is that one thing that you miss that you want to achieve now, and how does the southern film industry help you achieve that and become a better person and a better actor? I right now I think I have a feeling that I'm debuting here. So, and I think most exciting thing will always be when you don't take things for granted and when you're always ready to explore new things. And I still have butterflies in my stomach. Just 2 days to go for Dasra, and I haven't felt this nervous when my first film released. So I think. Just that love for cinema is the most important thing for you to grow as an actor, for you to do better cinema, for you to be better human being. You can't take anything for granted. This is cinema, and things work out sometimes, things don't work out sometimes. मगर audience को granted नहीं अगर लेंगे तो next film में then वो दिखा देंगे reality. So I think my most important thing is बहुत बार industry के लोग audience बोलकर बात करते हैं और हम पहले अंडरस्टैंड करना है कि हम ही ऑडियंस है। ऑडियंस ये सेपरेट ग्रुप नहीं है। हम भी पिक्चर देखते हैं, हम भी पिक्चर को लव करते हैं अगर हम ऑनेस्टली काम करें। और So this film Dasara is the massiest film, as you say. What has been the most fun incident or experience while shooting the film that will stay with you? Yeah. First thing, the reason massiest film, because I've said this before also, I really feel generally what happens with mass films is, जो mass film आपको विजुअल मारने का मन करता है, you'll enjoy the slow motion shots, you'll enjoy the theatrical experience. वो सब इसमें है मगर ये mass थोड़ा अलग है क्योंकि this will be the first mass film which will touch your hearts. Which will be heartwarming. I think we should put a caption on the poster saying heartwarming mass film. I think that's a combination you'll never get to see. और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता चलेगा जब पिक्चर देखेंगे। इसमें जो मास मूवमेंट्स है जहाँ आप विजिल मारेंगे उस टाइम में आपके आंखों में भी थोड़ा ग्लिटर रहेगा। तो आई थिंक दैट इज द कॉम्बिनेशन विच वी जनरली मिस एंड दैट इज द रीजन आई कॉल्ड इट द मासीएस्ट फिल्म। And regarding the moments during the shoot, ये बहुत ही मुश्किल शूट था। अभी मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि ये पिकनिक जैसी थी ये शूटिंग हो ये सब क्योंकि बहुत ही मुश्किल शूट था। कोल माइंस के बैकड्रॉप का फिल्म है, वो वर्ल्ड क्रिएट करना बहुत मुश्किल था और सारे पॉलिटिशियंस है अराउंड। ऑलवेज व्हेन आई ट्रैवल टू दिल्ली सेम फ्लाइट में कुछ प्रोटोकॉल के कुछ पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं। जब फ्लाइट से निकल रहा हूँ तो 2-3 पुलिस वेट करते रहते हैं तो एक छोटा डर है मगर जब ये थिएटर का एटमॉस्फेयर देख रहा हूँ तो फिर आई एम फीलिंग एट होम यार। डरिए मत, दिल्ली तो यार अपना दिल वालों का शहर है, प्यार बसा है यहाँ के लोगों। अभी उस साइड देखने को मिला अभी तो आई एम हैप्पी। बहुत जल्द मिलेगा जब आपकी पिक्चर को भी इतना प्यार मिलेगा दिल्ली से, बिल्कुल मिलेगा। Well, नानी जी आपसे ये जानना चाहेंगे no other normal chair so you can also sit. I'm feeling weird. I am good. Please. I have been sitting waiting for you. I'll also stand. I've been sitting and eating popcorn. All right. You can take this over actually. Yeah.
सो नानी यू आर एवरीवेयर. लखनऊ में आप ट्रक से, नागपुर में ट्रैक्टर से, जयपुर में जीप से, यार मतलब बैक टू बैक धमाकेदार एंट्री आप हर जगह दे रहे हैं. टीम का क्रिएटिविटी है वो, अगर आप तक रीच हो गया तो वर्कआउट हो रहा है. I mean, Nani is everywhere, yeah. Nani in the north, it's Nani, Nani, Nani everywhere. That Here we see. it means grandmother, no? Father's mother, right? So I'm in everyone's home, so I'm glad you know. देखो everyone. Yeah. तो ऐसी कोई बैंग ऑन एंट्री आपने दिल्ली के लिए भी प्रिपेयर करी है क्या? Sorry. हमने देखा क्या Bang on entry? जी अरे आपने तो ग्रैंड वेलकम दे दिया, मैं नॉर्मल एंट्री दिया तो हैप्पी. इधर जरूरत ही नहीं है. थैंक यू. ऑलराइट. आपका जो हुक स्टेप है, जो आप ड्रिंक करके उसमें जो डांस करते हो, तो मैं चाहती हूँ प्लीज एक बार बोला स्टेप अगर आप हमें दिखा दें. बस ड्रिंकिंग स्टेप अभी कर नहीं सकेंगे, उसको पार्टनर चाहिए. स्टेप को अगर वो कुछ वाटर बॉटल है, आप परफेक्ट. फुल बॉटल ले दिए. वन सेकंड तो अल्कोहल को डायरेक्ट बिना होल्ड किए पीता है, तो एक बॉटम सब बेसिकली, बट वाटर इज वेरी इजी, बट स्टिल यू कैन गिव मी द काउंट. म्यूजिक ये दिखता आसान है मगर बहुत मुश्किल है. डू नॉट सबको मतलब पिक्चर देखने से पहले यहाँ पे वो रियल लाइफ में देखना चाह रहे हैं. मूवी में देखने से पहले यहाँ देखना है. मूवी में आपको अल्कोहल को देखने के लिए मिलेगा या तो वाटर को, तो उसके हाँ इतना तो privilege होना चाहिए to see हाँ you live doing राइट it. करेक्ट. No, this is not the step pose. This is like just a mannerism of that. One, two, three, go! क्या बात है. ये हम कर रहे थे. There were a couple of shots where my director insisted I do it with actual alcohol. So कितने शॉट्स में कंप्लीट हो गया? वो 1-2 शॉट्स में कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरे दिन करना पड़ता है कि अल्कोहल 3-4 टेक के बाद माइंड कंट्रोल में है. थैंक यू. We'd love it, Nani, if you please take a seat. Yeah. बॉक्स ऑफिस पर जो है कलेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 100 करोड़, अब 500 करोड़, अब 1000 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो आप अपने दशहरा को इस नजरिए से देखते हैं? हाँ वो इम्पोर्टेंट है, मगर उसके लिए काम करें तो वो नहीं आएगा, वो नहीं मिलेगा. अगर हम अच्छे पिक्चर करने के लिए काम करेंगे तो बॉक्स ऑफिस ऑटोमेटिकली, अगर आप देखें तो जो भी लास्ट फ्यू ब्लॉकबस्टर्स है उनका जो फर्स्ट पार्ट स्लोली शुरू हुआ, देन आपका प्यार मिला तो सेकंड पार्ट 10 टाइम्स हो गया. सो यहाँ पे जीतने का है प्यार पहले, बॉक्स ऑफिस ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी. हाय नैनी, हाय हियर. हाँ मैं नमस्कार. अशोक धवन ईटीवी 12 से. ये आपने एक्शन मूवी बनाई है, और एक तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और इसकी शूटिंग वगैरह कहाँ हुई? ये एक अभी जनरली हमारे मूवी गोइंग ऑडियंस अगर एक फिल्म प्रॉमिस करती है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दे, वैसी फिल्म्स को ज्यादा लाइक कर रहे हैं. और दसरा एग्जैक्टली फॉल इनटू देयर, बिकॉज हम सबको वो कैरेक्टर्स कभी बाहर मिले नहीं होंगे. वो बैकड्रॉप हम कहीं देख, वी वुडंट हैव सीन दैट बैकड्रॉप. एंड जब आप थिएटर में जाएंगे, बाहर का ट्रैफिक और जो भी स्ट्रेस है आप कंप्लीटली भूल जाएंगे, क्योंकि एक कंप्लीट नया वर्ल्ड में आपको ट्रांसफर कर देंगे. एक विलेज कॉल्ड वीरलपल्ली जो है कि कोल माइंस में, ये एक्चुअली ये फिल्म का डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला, वो गोदावरकनी से है. गोदावरकनी में है ये सिंगरेनी कोल माइंस विच इज द बिगेस्ट इन एशिया. और उसके पापा उसी कोल माइंस में ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से डंपर का ड्राइवर का काम किए. तो उससे जितना वो वर्ल्ड के बारे में पता है किसी और को पता नहीं. और ये ऐसी स्टोरीज होते हैं जो हम एक रूम में बैठ के नहीं लिख सकते, किसी के लाइफ से आना है. तो श्रीकांत जिस तरह की डिटेल्स और जिस तरह की कैरेक्टराइजेशंस को प्लान किया है. हाय हाय कशिश. Hi. Actually, I want to know that what's that one thing that made you choose this script of Dasra? One thing I thought was this, what I said before, where this is extremely mass, but good mass. How do I say?
like when content and generally what happens, there will be parallels in any industry. कभी भी ये content films आते रहते हैं और एक साइड में एकदम मास मसाला फिल्म्स रहते हैं. इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा हमें जनरली, तो आपको दसरा में वो कॉम्बिनेशन मिलेगा. आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स वेरी गुड स्टोरी टेलिंग. आप कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाओगे, आप बिलीव करोगे कैरेक्टर्स. कोई कैरिकेचर नहीं दिखेगा, कोई लार्जर देन लाइफ नहीं दिखेगा. सबको आपने यू कैन फाइंड योर सेल्फ इन द फिल्म एंड उनके साथ हंसोगे, उनके साथ रोओगे, मगर जब वो मास मूवमेंट आएगा तो विजिल मारोगे. तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. अभी मैं बॉम्बे में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो देख रहा था. तो अभी क्या है कि दशहरा और भोला का क्लैश होने जा रहा है. तो आपने कहा था मैं भोला पहले देखने जाऊंगा, अब बॉम्बे में आपने कहा था. तो क्या, क्योंकि बॉम्बे जो भोला जो है वो कहती है कि रीमेक है, तो आप इस पे क्या देखते हैं कि जो रीमेक है बननी चाहिए या नहीं? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैश नहीं है. आपके पहले किसी और ने क्वेश्चन पूछा, अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप दोनों का क्लैश नहीं है ना. सेम भोला और दसरा भी ऐसे ही है. तो I think we all love Ajay Devgn sir, and I am also eager to watch Bhola. And आप सब मीडिया के दोस्तों भी आप मॉर्निंग शो को बोला जाइए, मैटनी को दसरा. अगर टायर्ड हो गए तो इवनिंग शो का दसरा जाइए. आई एम वेरी हैप्पी. 36 कट्स के साथ रिलीज किया जा रहा है. 36. हाँ. और वो कौन से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं जो आपके बहुत करीब भी होते हैं, आप चाहते हैं ये फिल्म में रहे. हाँ. तो ये 36 कट्स कौन से थे और किस? एक्चुअली कुछ भी वरी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 36 कट नंबर बड़ा लगता है, मगर उसमें 22 कट्स एक ही डायलॉग का रिपीटेटिव है. बस डायलॉग को म्यूट किया गया है. और डायलॉग ए वर्ड है, मैं बोलूंगा बाहर, बट आप डोंट वरी बिकॉज इट इज नॉट दैट वर्ड. तेलंगाना में एक वर्ड है जो फॉर चैलेंज के लिए, अगर किसी को चैलेंज करना है तो कहते हैं पैंचत बोलते हैं. तो एक मिनट. तो बिकॉज दिस वर्ड साउंड्स लाइक अ कस वर्ड फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम हिंदी, द सेंसर बोर्ड वाज वरीड एंड स्केर्ड. देन दे सेड, हाँ, वी अंडरस्टैंड इट्स अ डिफरेंट वर्ड, but there will be people who will make a scene out of this. Let us mute it. They said, we understood. Yeah, okay, then if you say so. So ये जो 36 cuts है, उसमें 24 cuts है बैंचर. फिल्म में almost every alternate scene में वो आती है वो डायलॉग. उसका धरनी का वो क्या बोलते हैं, उसका रेगुलर वर्ड है वो, तो उसको म्यूट किया गया. उसमें भी आई थिंक आधा म्यूट किया गया. तो हाँ, थैंक यू. दशहरा जो है कि नवरात्रों के बाद ही आता है, जैसे कि अभी जो है ये भी नवरात्रों के बाद ही आ रहा है दशहरा. तो उस दशहरा इसमें जो है कि क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, थोड़ा वो आपसे जानना चाहिए. आपको दसरा, ये फिल्म का नाम जो है दसरा ऐसे सिंपली नहीं लगाया गया. अगर आप सबको मैं शो डाल के बिना टाइटल के ये फिल्म दिखाऊं और आपको पूछूं क्या टाइटल लगाए, तो आप बोलेंगे दसरा, क्योंकि उतना ये फिल्म शुरू होता है एक दसरा से और एंड होता है एक दसरा से. बिटवीन उसके बीच में बहुत सारे ईयर्स व्हाट स्टोरी हैपेंस इज द फिल्म अबाउट. और ऑल्सो यूल गेट अभी जो वीरलपल्ली का ट्रेडिशन है दसरा का, ये रावण दहन तो हर प्लेस का ट्रेडिशन है, मगर मैं हैदराबाद से हूँ, मुझे बहुत सारे ट्रेडिशंस नहीं पता थे उस प्लेस का, और बहुत ही एक्साइटिंग ट्रेडिशंस है. जब मैंने सुना कि ये काम करते हैं दसरा के बिफोर उस पर्टिकुलर प्लेस में, बहुत ही एक्साइटिंग लगा. और मैंने सोचा जब आप थिएटर में देखेंगे आपको भी बहुत ही एक्साइटिंग लगेगा वो सब प्रोसीजर. Hi, Nanidhi sir. My name is Neha. So you have played a very powerful character in this movie, as we can see in the trailer. I want to ask one simple question: how different and how difficult for an actor to create a difference from the real life and the real life characters, like in this movie? How difficult? It is difficult, ma'am, and I think we are paid for that. So yeah, so we. It is definitely difficult, and particularly when characters like this, it's extremely difficult. See, मैं कभी कुछ रोम कॉम बनाऊं, अगर मेरे कैरेक्टर से वो क्लोज है, कपड़े से भी क्लोज है, वो इट्स वेरी इजी. You know happy, you while having fun you can finish the shoot. But ये जो है ऐसी फिल्म कभी कभी आते हैं करियर में
जो कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज क्लोथ्स पूरा आपने कभी ट्राई करा नहीं होगा। आपको उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका तो कैरेक्टर में जाने के लिए, कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए मुश्किल होता है, मगर जब वो अच्छा रिजल्ट आती है तो इट इज ऑल वर्थ इट एंड ऑफ द डे।